بولان کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحلوں تک پھیلی ہزاروں سال کی تہذیب کا مسکن بلوچستان اپنی درخشاں روایات کا امین ہے۔ بلوچستان کا اصل خزانہ اس کے لوگ اور یہاں کی تہذیب ہے۔ بلوچستان کے عوام نے ملک کے دیگر حصوں کی طرح درپیش آنے والے تمام چیلنجز کا حوصلے، ہمت اور حکمت سے مقابلہ کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ہزارگی زبان کے پروگرام کی کوئٹہ میں افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پی ٹی وی بولان کے نئے لوگوں کا بھی اجرا کر دیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی روایات اور منفرد انداز کے باعث تاریخی اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔ ہزارگی زبان میں نشریات کے آغاز سے پی ٹی وی کے گلدستے میں ایک اور پھول کی مہک شامل ہو گئی ہے۔ ہم قومی چینل کے ساتھ دیگر ملکی چینلز کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے: وزیر اعظم۔ ہزارگی زبان میں پروگرام کا آغاز علاقائی لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی۔ پی ٹی وی بولان پر چاروں زبانوں کو یکساں نمائندگی ملے گی۔ پی ٹی وی بولان پہلے ہی بلوچی، پشتو اور براہوی زبان میں نشریات پیش کر رہا ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فلوریڈا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا امریکی سینٹرل کمانڈ اور پاک فوج کے درمیان تربیتی روابط بڑھانے پر زور۔ آرمی چیف نے امریکی سینٹرل کے جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ بہترین مالیاتی پالیسی اور حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے سخت انتظامی اقدامات۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالیاتی سال 2024 کے پہلے 5 ماہ میں 64% تک کم ہو گیا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 6 ماہ میں پہلی بار سرپلس میں چلا گیا۔ 4 ماہ کے بعد نومبر وہ پہلا مہینہ ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 9 ملین پر رہا۔ بلوچستان کے صوبائی حلقے 12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظر ثانی کی درخواست خارج۔ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو انتخابی عمل متاثر ہوگا۔ درخواست میں انتخابی حلقہ بندی پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ کل سے کاغذات جمع کرانے کا عمل شروع ہوگا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تفصیلات جاری کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری۔ مسلم لیگ نون کے مختلف اضلاع میں امیدواروں کے ناموں پر حتمی غور کے لیے پارلیمانی بورڈ کا 13واں اجلاس آج ہوگا۔ پارلیمانی بورڈ امیدواروں کے حتمی انٹرویو کرے گا۔ اجلاس کی صدارت قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف مشترکہ طور پر کریں گے۔ چین کے شمال مغربی علاقوں میں 6.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے، ہلاک افراد کی تعداد 116 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ زلزلے کے باعث کئی عمارتیں زمین بوس، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ جانی نقصان پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا اظہار افسوس۔ غم کی اس گھڑی میں ہم چینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی، وحشیانہ بمباری سے درجنوں شہری شہید، جبالیہ میں قتل عام، 100 سے زائد افراد صہیونی درندگی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کے لیے قرارداد پیش کی جائے گی۔ مودی سرکار کا آزادی صحافت پر ایک اور وار۔ مودی سرکار کی ٹیلی کمیونیکیشن بل 2023 کو منظور کروانے کی تیاری۔ بل کی منظوری کے بعد مودی سرکار کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنی مرضی سے بند کر سکتی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیاں اور سوشل میڈیا صارفین میں تشویش کی شدید لہر۔
टेली कम्युनिकेशन के शोबे में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मदद से अहम पेशरफ, सैकड़ों मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से मुतालिक केस का फैसला। 1 अरब मालियत का स्पेक्ट्रम निगरान हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुल्क की पहली खलाई पॉलिसी की तैयारी और इसकी मुतल्लिका फॉरम से मंजूरी में भी SIFC का मरकजी किरदार रहा है। वफाकी वज़ीर IT और टेली कम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ। पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला, 1586 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल 73 मजीद खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। 18 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगान पनाहगज़ीनों की कुल तादाद 4,38,000 तक जा पहुंची। पाक फौज तालीम की रोशनियां बिखेरने के सफर पर गामजन। जनूबी वज़ीरिस्तान के दूर दराज इलाकों से नाखानगी के अंधेरों को खत्म करने के लिए मुहिम इल्म सबके लिए जारी। 2015 से गैर फाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदीजान में तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज। इलाके के आवाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाक फौज के इकदाम की तारीफ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज दूसरे मैच के लिए कौमी टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। खिलाड़ी एक रोज आराम के बाद 21 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चीन के शहर चॉन्चन में स्कीइंग वर्ल्ड कप का फ्री स्टाइल एरियल मिक्स टीम मुकाबला। गोल्ड मेडल अमरीकी स्कीयर्स की टीम के नाम रहा। चीन की टीम 2 ने चांदी जबकि टीम 1 ने कांसी का तमगा हासिल किया। फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप सीजन के वाहिद एरियल टीम इवेंट में चीन, अमेरिका, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड ने 2-2 टीमें स्कीइंग ट्रैक पर उतारी। और सऊदी अरब में फीफा क्लब वर्ल्ड कप ब्राजीलियन क्लब फ्लोमिनेस ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में फ्लोमिनेस ने मिस्र के अल अहली को 2 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरा सेमीफाइनल जद्दा में आज इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और जापान के अरावा रेड्स के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं शाहिद नसीम। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आप हमारे साथ रहिए। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। ओवरसीज पाकिस्तानी मैनेज RDA विद आसानी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। इन्वेस्टमेंट्स करो स्ट्रेस फ्री, पैसे वापस ले जाओ अब कभी भी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। अब रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स अपनी सारी बैंकिंग नीड्स पूरी कर सकते हैं विद MCB लाइव। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। MCB Bank for Life। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बोलान के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक फैली हज़ारों साल की तहजीब का मस्कन बलोचिस्तान अपनी दरख्शां रिवायात का अमीन है। कोयटा में PTV बोलान से हज़ार की ज़ुबान की नशरियात की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान का असल ख़जाना इसके लोग और यहाँ की तहजीब है। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी रिवायात और मुनफरिद अंदाज के बायस तारीखी अहमियत का हामिल इदारा है। वसाइल की दौड़ में लगी दुनिया को बलूचिस्तान के पहाड़ों और साहिलों में शायद सिर्फ मादनियात का ख़जाना नज़र आता हो, मगर कान में तरज़ी के इस बासी से पूछे बलूचिस्तान का असल ख़जाना क्या है। बलूचिस्तान का असल ख़जाना इसके लोग और लोगों की तहजीब है। जितनी पुरानी बलूचिस्तान की तहजीब है इतनी ही पुरानी इसकी खूबसूरत ज़बानें और उनको बोलने वाले हैं। आज मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि बलूचिस्तान में बोले जाने वाली एक और ज़बान को कौमी सतह पर नशरियात से एक नई पहचान मिलने जा रही है। मैं चाहूँगा कि हम इज़हार के ज़राए को मौसर बनाएं
ताकि अवामी राय आमा के ज़रिए पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें और सकाफ़त फेडरेशन को मजबूत बनाती है। बलूचिस्तान में माजी में होने वाली खूनरेज़ी का हज़ारा बरादरी और दीगर अक़वाम ने बेमिसाल अंदाज में हिम्मत और हिकमत से मुकाबला किया। उनका ये भी कहना था कि अवाम की भरपूर हिमायत के साथ दहशत गर्दी के चैलेंज पर काबू पाएंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ार की ज़ुबान की नशरियात को शोहदाए बलूचिस्तान के नाम करते हैं। ये वो शोहदा थे जिनका कसूर सिर्फ और सिर्फ उनकी पहचान था, इसके अलावा उनका कोई कसूर नहीं था। हज़ारा बरादरी के शोहदा के साथ साथ यहाँ पे 90,000 गैर हज़ारा शोहदा भी हैं। ऐसा नहीं है कि इन दरिंदों ने सिर्फ और सिर्फ हज़ारा बरादरी को ही निशाने पे रखा है। इसमें पाकिस्तान के तमाम तबके बिला तफरीक किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। इनका मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है जब हम और आप इकट्ठे होंगे। ये लड़ाई लड़ के लड़ेंगे और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह एक अमन का गहवारा बनाना, ये हमारा असल हदफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि PTV बोलान बलूचिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानों और सकाफ़त के रंगों को दुनिया भर में रोशनास करवाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों के अवाम तक रसाई के लिए PTV की नशरियात का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। हमने PTV मुल्तान की जो नशरियात हैं 24 घंटे पर उनको वसअत दे दी है। वैसे तो PTV बोलान 24 घंटे मौजूद है केबल और सेटेलाइट पे, लेकिन आज से जो टेरेस्ट्रियल यानी आम एंटेना के ज़रिए दूर दराज इलाकों में देखने की जो सहूलत है उसमें 1 घंटे का हम इजाफा कर रहे हैं। इस हवाले से जो रीब्रॉडकास्ट सेंटर्स हैं, जो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि ये प्रोग्रामिंग दिखाते हैं, ये पहले ही 22 मौजूद थे। हमने एक और रीब्रॉडकास्ट सेंटर कान मेहतरजई का इजाफा किया है। इससे पहले वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने PTV बोलान के लोगों का इजरा किया। तकरीब में हज़ार की ज़ुबान में खूबसूरत टैब्लो और नग़मे भी पेश किए गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ गहरे ताल्लुकात की अज़्म का अदा करता है। पाकिस्तान और नॉर्वे के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुल की हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी दो तरफा तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फ्लोरिडा में अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फ्रीकैन ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पाक फौज के दरमियान तरबियती रवाबित को बढ़ाने पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने अमरीकी सेंट्रल के जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। और यहाँ पर एक अहम खबर आपको देते हैं कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया है। करंट अकाउंट खसारा मालियाती साल के पहले 5 माह में 64% तक कम हो गया। टाइट मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसी और हुकूमत की तरफ से उठाए गए सख्त इंतजामी इकदाम के नतीजे में माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट बैलेंस में खातिर खा कमी आई है। दुरुस्त पॉलिसीज के नतीजे में जुलाई ta नवंबर करंट अकाउंट का खसारा कम होकर 1.16 बिलियन डॉलर रह गया है, जो कि गुज़श्ता साल इस अरसे के दौरान 3.3 बिलियन डॉलर था। 4 माह के बाद नवंबर वो पहला महीना है जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस 9 मिलियन डॉलर पर रहा। नवंबर 2023 में बरामदात और तफसीलात दोनों में बेहतरी दिखाई थी। 3.36 बिलियन डॉलर पर पाकिस्तान की बरामदात 12% तक बढ़ी और नवंबर के माह में 2.25 बिलियन डॉलर की तफसीलात 4% तक बढ़ी। हुकूमत ने बरामदात को कामयाबी से संभाला, जो नवंबर 2023 में 6% कमी के साथ 5.3 बिलियन डॉलर रह गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और तक़वियत देने में मददगार साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदियों से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त खारिज करते हुए वाज़ेह किया कि आम इंतखाबात के इनेकाद में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए।
انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ طے پانا معمولی بات نہیں، اس سے ملک میں قدرے استحکام آیا ہے۔ بینچ کے ارکان نے واضح کیا کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی، کسی کو انتخابات تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو انتخابی عمل متاثر ہوگا۔ درخواست گزار امیر خان نے انتخابی حلقہ بندی پر اعتراضات کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق ریٹرننگ افسران آج پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ اس پر رپورٹ کریں گے وقار حیدر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ووٹرز کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد 12,85,85,760 ہے۔ اگر مجموعی ووٹرز میں سے مرد ووٹرز کی تعداد دیکھیں تو یہ 6,92,63,704 بنتی ہے، جو کہ کل ووٹرز کی 53.87% ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,22,056 بنتی ہے، جو کہ 46.13% ہے۔ ملک کے بڑے صوبے پنجاب میں کل ووٹرز کی تعداد 7,32,07,896 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز 3,91,22,082 جبکہ خواتین ووٹرز 3,40,85,814 ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کے دوسرے بڑے صوبہ سندھ میں ووٹرز کی کل تعداد 2,59,94,759 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز 1,46,12,655 جبکہ خواتین ووٹرز 1,23,82,114 ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 2,19,28,119 ہے، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 1,19,44,397 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 99,83,722 ہے۔ صوبہ بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں 53,71,947 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 30,16,164 ہے جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 23,55,783 ہے۔ اسی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کل ووٹرز کی تعداد 10,83,029 ہے۔ یہاں پر مرد ووٹرز 5,86,406 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 5,14,632 ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے نشستوں کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھتے ہیں الیکشن سیل سے وقار حیدر کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے، جس کے لیے ملک بھر کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کی چھوٹی اور بڑی تمام سیاسی پارٹیاں قسمت آزمائی کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی میں 61 نشستیں تھیں، جس میں وفاق کے زیر اہتمام ایکس فاٹا کی نشستیں بھی شامل تھیں۔ ان 61 سیٹوں میں خواتین اور اقلیتی نشستیں بھی شامل تھیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں میں خیبر پختونخوا کی 6 نشستیں کم ہو گئی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں 45 ہیں جبکہ مکمل ایوان 55 کا بنتا ہے۔ گزشتہ الیکشن میں خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں 39 تھیں جبکہ 12 نشستیں فاٹا کی تھیں۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد ایکس فاٹا خیبر پختونخوا کا باقاعدہ طور پر حصہ بن گیا ہے۔ یوں مختص نشستیں کم ہو گئیں۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں 6 نشستیں کم ہونے کے ساتھ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں 16 نشستوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ صوبائی حلقہ PK1 لوئر چترال سے شروع ہوتا ہے اور PK 115 ڈیرہ اسماعیل خان پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کا حلقہ NA1 چترال سے شروع ہو کر NA45 ڈیرہ اسماعیل خان پر ختم ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے حلقے کی آبادی 7,88,933 رکھی ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز انور چوہان سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان زاہد سلیم کی کوئٹہ میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں انتخابات میں سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ ACS ہوم نے الیکشن سیکیورٹی پلان اور پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمروں کی تنصیب پر بریفنگ دی۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے پنجاب کے 42 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران سے حلف لے لیا۔ اس موقع پر الیکشن کمشنر پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلف لینے کے بعد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران باقاعدہ طور پر الیکشن آفیشل انتخابی قوانین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ سعید گل نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتا ہے۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर का अमल जारी रखे हुए है। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास आज होगा। उम्मीदवारों के नामों का फैसला करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के हतमी इंटरव्यूज करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकातें करके उनके इंटरव्यूज करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास आज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास की सदारत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर करेंगे। आज होने वाले इजलास में सूबे पंजाब के फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला, चिन्योट, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह और झंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन से कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 18 नशस्तें हैं। आज फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजलास से मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 18 जबकि पंजाब असम्बली की 38 नशस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर हातमी गौर किया जाएगा। इजलास में मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। चेयरमैन इलेक्शन सेल सेनेटर इसहाक डार भी इजलास में शिरकत करेंगे। आज के इजलास में फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। इजलास में डिवीजनल कोऑर्डिनेटर, डिवीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम जिले सदूर के उम्मीदवारों के बारे में सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। बुलेटिन में गजा की सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। साथ रखिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। अस्सलामुअलैकुम। बैनुल अक़वामी मंजरनामे के साथ मैं हूँ नाज़िया कमल। बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं और रफा समेत दीगर इलाकों पर सफाकाना हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से जारी से होनी दहशतगर्दी में शहदा की तादाद 19,453 हो गई, जबकि 52,286 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। काबिज़ फौज ने नाबलूस के जनूबी कस्बे अकरबा में एक कसीरुल मंजिबा इमारत को धमाके से उड़ा दिया। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने इसी कस्बे से 2 अफराद को घरों पर छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज ने गैर कानूनी छापों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों पर आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग की, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने हेब्रोन के नवाही इलाकों से दर्जनों नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में झड़पों के दौरान मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की भी तस्दीक की है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने इसराइली फ़ौज के हाथों शिमाली गजा के कमाल अदवान हस्पताल की तबाही पर अफसोस का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालिबा दोहराया है। उनका कहना है कि गजा का तिब्बी निज़ाम पहले ही तबाहकुन हालात से दो चार था और अब इस हस्पताल का खात्मा एक और बड़ा धचका है। आलमी इदारा सेहत ने बताया है कि हस्पताल में काम करने वाले अमले के मुतअद्दिद अरकान को इसराइल की फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने मुतालबा किया है कि हस्पतालों, तिब्बी अमले और मरीजों पर हमले बंद होने चाहिए। और गजा में जंग बंदी के हवाले से सलामती कौंसिल का इजलास आज हो रहा है। इजलास में फौरी और देरपा जंग बंदी से मुतालिक अमूर पर बात की जाएगी और करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक की जानिब से पेश की जा रही है। चंद रोज़ कबल अमरीका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी थी, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई थी। कुछ बात करेंगे चीन की। चीन के शिमाल मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटकों के नतीजे में हलाक अफराद की तादाद 116 हो गई है, जबकि 400 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। चीन के CCTV ने तस्दीक की है कि पीर की रात आने वाले ज़लज़ले के बायस सूबा गांसू में 105 जबकि हमसाया सूबे चिंगाई के शहर हाईजोंग में 11 अफराद हलाक हुए हैं।
रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के नतीजे में सैकड़ों मकानात और कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम शदीद सर्द मौसम के बायस इमदादी कारकुनान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। चीनी सदर ने रेस्क्यू इदारों को तलाश और रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने की हिदायत की है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन में ज़लज़ले के बायस हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गम की इस घड़ी में चीन के बहन भाइयों के साथ हैं। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने चीन की हुकूमत और अवाम के साथ गुज़िश्ता रात ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि हमारी हमदर्दियाँ इस अलमनाक वाक़े से मुतासिर होने वालों के साथ हैं। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले खुसूसी इजलास में लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के हवाले से हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इकदाम की मंजूरी दी गई। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि हाई प्रोटीन चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए सरगोदा में फूड रिसर्च सेंटर को पूरी तरह से फंक्शनल किया जाए। उन्होंने कहा कि बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इससे पहले इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट के क़याम के हवाले से अफजाए नताइज सामने आ रहे हैं। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए मकामी सतह पर जदीद टेक्नोलॉजी और महारत का इस्तेमाल ज़रूरी है। मकामी फार्म्स को मॉडल फार्मिंग तकनीक की तरफ राग़िब करना होगा। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की मदद से टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में अहम पेशरफ्त हुई है। निगरां वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें हमवार करने के लिए SIFC के फोरम से मुल्क व कौम के मफाद में अहम फैसलों का बराह रास्त फ़ायदा आम आदमी को होगा और मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि फोरम में अस्करी और सियासी क़यादत के साथ तमाम फरीकों की मौजूदगी फैसला साजी में मुआविन होती है। वफाकी वज़ीर IT ने कहा कि साल 2014 में 14 से सैकड़ों मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का केस महकमाना ताख़ीर की वजह से अदालत में ज़ेर बहस रहा। इस मामले को SIFC के फोरम पर उठाया गया, जिसके बाद सिंध की अदालत आलिया ने रोज़ाना की बुनियादों पर केस की समाअत की और 14 दिसंबर को फैसला सुनाया। 1 अरब मालियत का ये स्पेक्ट्रम निगरां हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुल्क की पहली खलाई पॉलिसी की तैयारी और इसकी मुतल्लिका फोरम से मंजूरी में SIFC का मरकज़ी किरदार रहा है। आवाम को बहुत जल्द सेटेलाइट इंटरनेट भी दस्तयाब होगा, जबकि मौजूदा नेटवर्क में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। पाक फौज के जवान वतन के जानिसार। पाक फौज की मुल्क के लिए बेलौस कुर्बानियां किसी से ढकी चुकी नहीं है। हमारे फौजी जवान हर दम मुल्क की हिफाजत और बका के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान की मट्टी हमारे शोहदा के खून से सराब है। बहैसियत कौम हम शोहदा के लहू के मकरूस हैं। शहीद होकर तेरे शाह सवार आए हैं, मेरे वतन तेरे जानिसार आए हैं। मेरे वतन तेरे जानिसार आए हैं, शहीद हो के तेरे शाह सवार आए हैं। मेरे वतन तेरे जानिसार आए हैं, शहीद हो के तेरे शाह सवार आए हैं। जिन्होंने अपने लहू से किया सैराब तुझे, जिन्होंने अपने लहू से किया सैराब तुझे, तेरे लिए वो खज़ा में बहार लाए हैं। मेरे वतन तेरे जानिसार आए हैं। तुम्हारा नाम भी पहचान भी है पाकिस्तान, तुम्हारा दीन भी ईमान भी है पाकिस्तान। मुल्क से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी की दर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है।
गुज़िश्ता रोज़ 1586 अफगान शहरी वापस चले गए, जिनमें 365 मर्द, 298 खवातीन और 923 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 65 गाड़ियों में 73 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,38,376 हो गई है। दहशतगर्दी की लानत को कामयाबी से जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुश्तरका ताउन से जनूबी वज़ीरिस्तान के दूर दराज इलाकों से नाखानगी के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए मुहिम इल्म सबके लिए पूरे ज़ोर व शोर से जारी है। इस मुहिम के तहत 2015 से गैर फाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदीजान में तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तालीमी हौसला अफजाई के लिए बच्चों में किताबें और स्टेशनरी तकसीम की गई। मदीजान के मकामी अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाक फौज की अनथक कोशिशों को बेहद सराहा। मुहिम को सराहते हुए मकामी लोगों का कहना था कि अगर इसी तर्ज पर दीगर गैर फाल तालीमी मराकज़ को भी फाल कर दिया जाए तो इससे न सिर्फ मजमूई शरह खानदगी बढ़ेगी, बल्कि ज़मशुदा अजला के नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। खबर है भारत से, जहां मोदी सरकार का आज़ादी सहाफत पर एक और बार टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर करवाने की तैयारी कर ली गई। बिल की मंजूरी के बाद मोदी सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी मर्जी से बंद कर सकती है और भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के इख्तियारात ले लिए जाएंगे। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफत पर कई हमले कर चुकी है। जनवरी 2023 में एलन मस्क ने दावा किया कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर मोदी मुखालिफ ट्वीट्स हटाने के लिए दबाव डाला। फरवरी 2023 में मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर BBC के दफातर पर छापे मारे गए। रवा साल मार्च में मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई थी। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमती जाबिराना हथकंडों से तंग आकर भारत में अपना दफ्तर बंद कर दिया था। भारत में सहाफत का गला घोंटने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी के कवानीन का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज मजीद 84 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। मुख्तलिफ पुलिस थानों में 36 नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि एक बिजली चोर मौके से गिरफ्तार भी किया गया। बिजली चोरों को 48 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। रनिंग और डेड डिफॉल्टर सार्फिन से एक रोज में 2 करोड़ 48 लाख रुपए वसूल किए गए। मैपको मुमताज़ाबाद सब डिवीजन के इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक बिजली चोर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वाजिबात की अदम अदायगी पर 58,60,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि 5 ट्यूबवेल्स की बिजली मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। हैदराज खान सब डिवीजन, बहावलपुर और मेलसी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। पाक अफगान सरहद पर तोरखम पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। अफगानिस्तान जाने वाली कार्गो गाड़ी से गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। कलेक्टर कस्टम के मुताबिक अफगानिस्तान जाने वाली कार्गो गाड़ी से 1 लाख सऊदी रियाल और 45 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। ड्राइवर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मोहम्मद अल गजाली इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी वहीं तदफीन की जाएगी। मोहम्मद अल गजाली सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज और सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के रुकन भी थे। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में CCTV फुटेजेस की फ्रांसिक रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई जा सकी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज उमर शब्बीर ने मुकदमे की समाअत की। कमसिन मुलाजमा रिजवाना की वालदा और सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम अपने वकला के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। अदालत ने CCTV से मुतालिक दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मुकदमे की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नाजरीन, नकल मकानी करने वालों का आलमी दिन कल मनाया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मदीहा नजीर। बैनुल अक़वामी हिजरत एक बढ़ता हुआ आलमी रुझान है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का लालच बैनुल अक़वामी नकल मकानी का एक मजबूत मुहर्रिक है। ज्यादातर मगरबी ममालिक को माशी तरक्की को चलाने और बरकरार रखने के लिए तारकीन वतन पर इन्हिसार करना पड़ता है। यही वजह है कि महफूज और मुनज़्ज़म हिजरत की हिमायत करना
इन तरक्की याफ्ता ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। तारकीन वतन आलमी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इन दोनों ममालिक में तरक्की और जिद्दत लाते हैं, जहाँ से वो आते हैं और जहाँ वो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी नकल मकानी के मुमकिना फ़वाइद आज़ाद बैनुल-अक़वामी तजारत से हासिल होने वाले मुमकिना फ़वाइद से ज्यादा हैं, बशर्त ये कि इसे सही पॉलिसियों से ताउन हासिल हो। दुनिया ने दो तरफा इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन को मजबूत बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी नकल मकानी की अहमियत को तस्लीम कर लिया है। ये दिन तकाजा करता है कि तालीम याफ्ता और बाहुनर अफराद की नकल मकानी को कौमी तरक्की की हिकमत अमली का हिस्सा बनाकर इसके समरात से फायदा उठाया जाए। मदीहा नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला खानीवाल में अक्टूबर ता दिसंबर की दूसरी सैमाही की मद में 1,55,250 मुस्तहिक ख़वातीन को 8,500 रुपये की अदायगी का अमल जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कुलज़म बशीर अहमद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला खानेवाल की 1,50,250 मुस्तहिक ख़वातीन में दूसरी तिमाही की इमदादी रकम की तकसीम का अमल जारी है। ज़िला भर में 116 इमदादी सेंटर्स बनाए गए हैं। अब तक 80,000 मुस्तहिक ख़वातीन में इमदादी रकम शफाफ अंदाज में तकसीम कर दी गई है, जिसमें 7,000 हामला ख़वातीन शामिल हैं, जिन्हें 2,500 रुपए के साथ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए ग़िज़ाई बैग भी दिया जा रहा है। हमें टोकन मिला है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें डील किया है। हामला औरतों का पहले हुआ है और हमें भी माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट दिया है और बहुत अच्छा काम हुआ है। हम यहाँ पर सर्वे के लिए आए हैं और यहाँ पर लेडीज का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। रकम की अदायगी की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। बदनज़मी या शिकायत की सूरत में रिटेलर को फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है। जिला खानेवाल में 1,55,250 रजिस्टर्ड खानदानों को 8500 की रकम की कामयाबी से अदायगी की जा रही है। हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो तमाम अदायगी जो सेंटर्स हैं इनको विजिट भी करती हैं और हर तहसील ऑफिस और ज़िला के ऑफिस की सतह पर कंप्लेंट सेल बना दिए गए हैं, जिस काउंटर्स हैं जहां पर खवातीन अपनी शिकायत का अंदराज करवा सकती हैं। नई मुस्तहिक खवातीन की रजिस्ट्रेशन के लिए जिला भर में 27 डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर भी मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बुजुर्ग और माजूर खवातीन के लिए खुसूसी काउंटर्स बनाए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुस्तहिक खवातीन को समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी कमी की है। ये कमी कितने फीसद है, बता रहे हैं इशफाक अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये और डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे की कमी के बाद रोहिंग्या खान के ट्रांसपोर्टरों ने भी किरायों में कमी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के समराद आवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िले के तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 17 जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी कर दी है। किरायों में कमी के बाद शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट और बैनुल-अज़ला ट्रांसपोर्ट के मुसाफिर इस रिलीफ पर खुश हैं। अभी हम निकले हुए हैं, तमाम बसों के ऊपर अड्डों के ऊपर किरायानामा फिक्स करवा रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। और हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते हैं तो हमें तकरीबन 200-300-400 तक का फ़ायदा हो गया है। गुड्स किरायों में कमी होगी, इससे अशिया खुद नोश में जो है कमी का सबब बनेगा। भाई मैं नॉन एसी में बैठ के आया हूँ साकबाद से, 17% किराया कम किया है इन्होंने गाड़ी वालों ने। मेहरबानी हुकूमत की, किराया भी घट किया इन्होंने, तेल भी घट किया, महंगाई भी टूटेगी। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 20% कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुँच रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम होगी, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान। और नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए साल 2023 मुश्किल साल रहा, ताहम मौसर पॉलिसियों और हुकूमती इक़दामात की बदौलत अब मईशत मुस्तहकम हो रही है और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। 2023 में आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे, तिजारती अदम तवाज़ुन की वजह से आलमी अदायगियों में मुश्किलात और IMF के साथ मुआहदे में ताखीर की वजह से माशी शोबे की मुश्किलात बढ़ी, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियों में मुश्किलात जैसे मसाइल हर खासो आम को परेशान कर रखा। 2022 और 2023 के सैलाबों से ज़राई पैदावार भी बुरी तरह मुतासर हुई। इन हालात में मुल्क की क़यादत की तरफ से जहाँ मुस्बत माशी पॉलिसी
पॉलिसियां वाजे की गयी, वहीं कुछ मुश्किल फैसले भी किए गए। IMF के साथ 9 माह का मुआहदा किया गया और करेंसी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए गए, जिसकी वजह से डॉलर के रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। पेट्रोलियम की मसनूआत जो बुलंद तरीन हद को पहुँच चुकी थी, अब बतदरीज कम हो रही है। स्टॉक मार्केट में तेजी कारोबारी तबके के लिए खुशी की नवीद है। सनत वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आप मईशत को बेहतर कर सकते हैं। सनत रोजगार मुहैया करता है, टैक्स बूस्टर है, टैक्स कलेक्शंस के ऊपर काम करता है। और मैं अपनी ताजर बरादरी से अपील करूंगा, हुकूमत ने अपने तरफ से तो जो बेहतरी कर सकते थे की, अब हमें भी अशिया में कमी करके एक जो है जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। जो डॉलर को इन्होंने एकदम से रोका है और उसको बढ़ती हुई उसकी मांग को, तो उससे हमें बहुत होप मिला है। दरामदाद से मुतलिक तरजीही फैसलों की बुनियाद पर हालात बेहतर हो रहे हैं। ज़ेर मुबादला की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। अशिया साजी की सनत फरोग हासिल कर रही है और बरामदात में भी बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। FDI आती है तो लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। तो इस वक्त जो आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी देख रहे हैं, उसकी मेन रीजन FDI है। लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसको प्रमोशन मिल रही है और इससे यह है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी और हमें रोजगार भी लोगों को मिलेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी की अलामात जाहिर होने से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होने से तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा और लोगों को रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात, सैलाब की तबाहकारियों और इसके मुआशी नुकसानात का अहाता कर रही हैं हुमा सदफ अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत मुनफरिद तो है ही, मगर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से नाजुक भी है। हर साल सैलाब की तबाहकारियों से नबुर्द आजमा पाकिस्तान और उसके अवाम का दुनिया में कार्बन के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। लेकिन इन तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले दुनिया के पहले 10 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस जहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहीं गैर मामूली बारिशें बरसाती नालों में तुग़यानी का बाइस हैं। दरियाओं से, समुद्रों से और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ से अभी बखरात बड़ी तेजी से हवा के अंदर जा रहे हैं और वो बखरात जब प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट होते हैं तो उससे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर बारिशों का सिलसिला बढ़ गया है और उसके बढ़ने की रीज़न ये है कि ग्लेशियर बहुत मेल्ट हो रहे हैं और उनकी वजह से एवेपोरेशन प्रोसेस तेज हो रहा है। लाखों पाकिस्तानी हर साल आने वाले सैलाब में अपना घर बार और माल मवेशी खो देते हैं, जबकि मुल्क की मईशत पर सैलाब की तबाहकारियों के मनफी असरात इसके अलावा हैं। ऐसे में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का पाकिस्तान का अज़्म और भी पुख्ता हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस हवाले से बराह रास्त मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। यही वजह है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान हर फोरम पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ननकाना साहिब में माइनॉरिटीज़ इंटरनेशनल पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इसी तकरीब का अहवाल ननकाना साहब से जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान में बैनुल मज़हब आमांगी दुनिया भर में एक मिसाल है, जहां तमाम मज़हब के मानने वाले एक दूसरे की खुशियों में भरपूर शिरकत करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि तमाम मज़हब अमन, मोहब्बत और इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। तमाम कम्युनिटी के लिए जितने और भी मज़ाहब हैं उनके लिए बड़ी आज़ादी है कि वो अपने दिनों को बड़ी आज़ादी के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान में ननकाना साहब में स्पेशली मसीही, सिख भाई और मुस्लिम भाई और हिंदू भाई इकट्ठे एक साथ एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। तमाम क्रिश्चियन बहन भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसी धरती है जिसमें तमाम अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार को बड़े आजादाना तौर से मनाती हैं। इस मौके पर मसीह बरादरी की तरफ से सिख, मुस्लिम और हिंदू रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक काटा गया और मुल्क की तामीरों तक की अमन सलामती और बैनुल मज़हब आमांगी के फरोग के लिए खुसूसी दुआ की गई। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मसीह बहन भाई भी थे और मुस्लिम भी थे, हमने सब मिलकर
کہ خداوند کی شکر گزاری کی۔ شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا اور ضلعی انتظامیہ کا جو مسیحی تہواروں پر ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں کرسمس ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ سر۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی اضلاع میں شدید سرد اور مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ اس دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں شدید دھند اور سموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے، جو کہ کچھ یوں رہی۔ لہ میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سکردو میں -8، استور -6، گلگت -5، جبکہ گوپس میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔